Today we are starting Enrichment Activities 4, Chapter number 8, The Demon and the Dancer. The demon Bhasmasura was very clever but he was too proud of his power. दानव भस्मासुर बहुत चालाक था लेकिन अपनी ताकत पर उसे बहुत घमंड था. Read the story to find out what happened to him. तो इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ. Once upon a time there was a demon who was very clever. बहुत समय पहले एक दानव था जो बहुत चालाक था. He studied and worked very hard. उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और काम किया. Soon he knew all that there was to know. जल्दी ही उसे सब कुछ आ गया जो वह जानना चाहता था. However, that was not enough for him. लेकिन यह उसके लिए काफ़ी नहीं था. He wanted to be the most powerful being in the world. वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था. So he went into a forest. इसलिए वह जंगल में चला गया. He prayed so hard and for so long that the God of power was moved. उसने बहुत लंबे समय तक और बहुत लगन से प्रार्थना की जिससे शक्ति के देवता खुश हो गए. The God appeared before him and said, भगवान उसके सामने आए और बोले, I am pleased with you. What do you want? मैं तुमसे खुश हूँ. तुम क्या चाहते हो? The demon opened his eyes and fell at the God's feet. दानव ने अपनी आंखें खोली और भगवान के पैरों में गिर गया. Not much, my lord. I just want to be the most powerful person in the world. ज़्यादा नहीं प्रभु, मैं बस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ. How do you want to be powerful? The God wanted to know. तुम कैसे ताकतवर बनना चाहते हो? भगवान ने पूछा. Do you want to be the strongest? क्या तुम सबसे ताकतवर बनना चाहते हो? Do you want to be the wisest? या सबसे बुद्धिमान? The young demon had thought it all out. उस युवा दानव यानी यंग डिमन ने सब कुछ सोच के रखा हुआ था. He wanted to be strong and powerful. वह ताकतवर और शक्तिशाली बनना चाहता था. He also wanted to live forever and control everyone. वह हमेशा जीना चाहता था और सबको अपने काबू में रखना चाहता था. So he said, तो उसने कहा, Lord, please grant me a wish. प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए. Whenever I place my hand on someone's head, जब भी मैं किसी के सर पर हाथ रखूं, that person should at once be reduced to ashes. तो वह इंसान तुरंत राख बन जाए. The God was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. भगवान को इतनी बुरी और खतरनाक शक्ति देने की बड़ी चिंता हुई. However, since he had given the demon his word, he had to grant the wish. लेकिन भगवान ने वादा किया था, इसीलिए उन्हें यह वरदान उसको देना पड़ा. So the young demon became known as Bhasmasura, the demon of ashes. इस तरह वह दानव भस्मासुर कहलाने लगा और राख बनाने वाला दानव के रूप में भी लोगों में कहलाने लगा. भस्मासुरा went mad with his power. भस्मासुर अपनी ताकत से पागल हो गया. He first went around the forest touching animals on the head and reducing them to ashes. पहले उसने जंगल में जानवरों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें राख बना दिया. Then he began to touch every living being on the head, turning him to ashes. फिर उसने हर जीव को छूकर राख बना दिया. After that, he ran around the world shouting. उसके बाद वह दुनिया में दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा. Let me see who can defeat me. देखो कौन मुझे हरा सकता है. The people of the world got very frightened. दुनिया के लोग बहुत डर गए. They didn't know how to control this demon. उन्हें समझ नहीं आया कि इस दानव को कैसे रोका जाए. So they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him. इसलिए वे अपने घरों में छिप गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई उसे रोके. Now Bhasmasura enjoyed one thing very much. He loved to dance. भस्मासुर को एक चीज़ बहुत पसंद थी. उसे नाचना बहुत अच्छा लगता था. One day when he was walking through the town, he suddenly heard the tinkling of anklets. एक दिन जब वह शहर से गुजर रहा था, उसने पायल की झनकार सुनी. भस्मासुरा turned towards the sound and stood still. भस्मासुर आवाज़ की ओर मुड़ा और रुक गया. He saw a young woman dancing most gracefully. उसने देखा कि एक सुंदर युवती यानी एक सुंदर सी लेडी बहुत अच्छे ढंग से नाच रही थी. The dancer too saw him and instead of running away in terror, she asked. तो उस लेडी ने उसे देखा और डरकर भागने की जगह वहीं खड़ी रही और पूछा, Can you dance like me? क्या तुम मेरे जैसा
डांस कर सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, सेड भस्मासुरा। बिल्कुल कर सकता हूँ, भस्मासुर बोला। देन डू व्हाट आई डू, सेड द डांसर। तो वही करो जो मैं करती हूँ, उस डांस करने वाली लेडी ने कहा। दैट वॉज इनफ फॉर भस्मासुरा। यह सुनकर भस्मासुर खुश हो गया। ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली एज द यंग वुमन। वह भी उसी की तरह सुंदर नाचने लगा जैसे वह नाच रही थी। द डांसर whirled अराउंड एंड बेंट डाउन एंड सो डिड ही। नाचने वाली लेडी घूमी और फिर झुकी और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया जैसा वो कर रही थी। शी टच्ड हर फीट एंड स्ट्रेटेंड अप। उसने अपने पैर छुए और सीधी खड़ी हो गई। ही डिड द सेम। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। शी डिड ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस एंड भस्मासुरा कॉपीड ईच वन ऑफ देम। उसने तरह तरह के डांस के एक्शंस किए और भस्मासुर ने वैसे ही उसी की तरह सबकी नकल की। देन शी पुट हर हैंड ऑन हर हेड एंड twirled अराउंड। फिर उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और घूम गई। भस्मासुरा डिड द सेम। भस्मासुर ने भी वही किया। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? अब सोचो आगे क्या हुआ। इन अ सेकेंड भस्मासुरा वॉज रिड्यूस्ड टू अ पाइल ऑफ एशेज। एक पल में भस्मासुर राख का ढेर बन गया। पीपल रश्ड आउट टू सेलिब्रेट। लोग खुशी से बाहर आ गए। दे वॉन्टेड टू थैंक द यंग डांसर। वे उस डांस करने वाली लेडी को धन्यवाद देना चाहते थे। दे लुक्ड अराउंड फॉर हर बट दे कुडंट फाइंड हर एनीवेयर। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो ये थी आपकी द डेमन एंड द डांसर। तो ये कहानी दानव भस्मासुर की है। वह बहुत चालाक था और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसे ताकत की बहुत चाह थी। उसने भगवान से वरदान मांगा कि अगर वह किसी के सिर पर हाथ रखे तो वह तुरंत राख बन जाए। भगवान ने भी उसको मजबूरी में यह शक्ति दे दी। वरदान पाकर भस्मासुर घमंडी हो गया। वह हर किसी को सिर पर हाथ रखकर राख बनाने लगा। लोग डर गए, अपने घरों में छिपने लगे। भस्मासुर को नाचना बहुत पसंद था और एक दिन उसने एक सुंदर नाचने वाली लड़की को देखा। लड़की ने उसे जैसे जैसे कहा कि मेरे जैसा नाचो, भस्मासुर उसकी नकल करता रहा। अंत में लड़की ने सिर पर हाथ रखकर जोर से घूमा। भस्मासुर ने भी वैसे ही किया और खुद ही राख बन गया। इस तरह भस्मासुर अपनी ही शक्ति से ख़त्म हो गया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़्यादा घमंड और गलत ताकत हमेशा नुकसान दे जाती है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और शक्तियों का या अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 एन एडवेंचर को पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू। Audio Jungle.